Hello my dear student, welcome to you in my YouTube channel that is Pioneer on Move. This is your English teacher Gaurav from Bhairanath Inter College Varanasi. My dear student, I have already made two videos on this chapter. So today I am just going to discuss from the 11th para because 10 paragraph has been already discussed in earlier two videos. So let me start from the 11th para. Here is the 11th para before you can see here. So I'm just going to read and then after I will explain this chapter. In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna, with the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with a rare happiness. He said, "All I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." In spite of having travelled all over the world, Khan Sahab, as he is fondly called, is excitingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. A student of his once wanted him to head a Sahnai school in USA, and student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. But Khan Sahab asked him if he would be able to transport river Ganga as well. Later he is remembered to have said, "That is why whenever I am in a foreign country I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai I think of only Banaras and the holy Ganga, and while in Banaras I miss the unique matha of Dumrao." Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can be naturally play the Sahnai every morning at the Kasi Vishwanath temple. So this is the end of this chapter. My dear student, let me explain this chapter from the 11th para. This is before you. First of all, I would like to explain this para in Hindi, then after I will explain it into English. So let me start. In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. मैंने आपको पहली भी वीडियो में आपको बता रखा था कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को सन 2001 में भारत रत्न की उपाधि मिली। तो वही उसी बात को यहाँ पे फिर से बताया गया है कि इन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वॉज अवॉर्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला, पुरस्कार मिला, जिसका नाम था द भारत रत्न। With the coveted award resting on his chest and his eyes glistening with a rare happiness, he said, कह रहा है कि विद द कॉवर्टेड अवार्ड, कॉवर्टेड का मतलब होता है प्रतिष्ठित। हियर इज़ द मीनिंग ऑफ कॉवर्टेड। यू कैन सी दैट मच डिज़ायर्ड, जिसकी बहुत ज़्यादा इच्छा हो उसे हम कॉवर्टेड कहते हैं। तो जो प्रतिष्ठित अवार्ड था, विद द कॉवर्टेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, उनकी छाती से लगा हुआ वो जो अवार्ड था, एंड हिज आइज ग्लिटनिंग, उनकी आंखें चमक रही थी, विद रेयर हैप्पीनेस, एक दुर्लभ, रेयर मतलब होता है हैप्पी, रेयर मतलब होता है दुर्लभ, और हैप्पीनेस मतलब खुशी, एक दुर्लभ सी खुशी के साथ उनकी आंखें चमक रही थी। ही सेड, उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इज़, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, अपने बच्चों को संगीत सिखाएं। दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, यह भारत की सबसे धनी विरासत है। रिचेस्ट मतलब सबसे धनी, और ट्रेडिशन मतलब होता है विरासत। यह भारत की सबसे महंगी या सबसे अच्छी या सबसे बड़ी विरासत है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक, यहाँ तक कि जो पश्चिमी देश के लोग हैं, यानी जो विदेशी लोग हैं, वो भी यहाँ आते हैं इसी को सीखने के लिए। In spite of having traveled all over the world,
पूरे विश्व का भ्रमण करने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व का, पूरे संसार का भ्रमण करने के बावजूद खान साहब एज ही फॉन्डली कॉल्ड, उन्हें प्रेम से, उन्हें सप्रेम से बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? खान साहब। उनको उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को अक्सर लोग प्यार से खान साहब के नाम से जानते थे, उन्हें खान साहब कह के बुलाते थे। तो कह रहा है इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार का भ्रमण करने के बावजूद बाद खान साहब एज ही फाउंडली कॉल्ड, खान साहब ऐसा कहते थे, इज़ एक्साइटिंगली फॉन्ड ऑफ अ बनारस एंड दुमराव, वह बनारस और दुमराव को बहुत चाहते थे। बनारस और दुमराव, इज़ एक्साइटिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस, मतलब वो अत्यंत, एक्साइटिंगली का यहाँ पर देखिए, एक्साइटिंगली एक वर्ड है, एक्साइटिंगली का मतलब होता है अत्यंत रूप से, यानी मोस्ट डिज़ायरस, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा इच्छा होती उसे हम एक्साइटिंगली कहते हैं। तो कह रहा है कि उनको बनारस और दुमराव की बहुत ज़्यादा चाह थी, यानी बनारस और दुमराव से वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। अगर मैं आपको बताऊं कि बनारस कौन सा प्लेस है जहाँ पर उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ली थी, अपनी करियर को बनाया था, वो प्लेस क्या है? बनारस है, इनके मामा का घर है। और दुमराव जहाँ पर वो पैदा हुए थे, दुमराव आपको पहले ही पैराग्राफ में बताया गया था कि दुमराव वो प्लेस है जहाँ पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। और एक वर्ड और आया है आपके सामने कि खान साहब, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को खान साहब के नाम से हम लोग जानते हैं। तो कह रहा है कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व का भ्रमण करने के बाद खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, अक्सर उन्हें खान साहब प्यार से खान साहब के नाम से जानते हैं, इज़ एक्साइटिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड दुमरा, और वो अत्यंत प्रेम करते थे। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना। तो वो दुमराव और बनारस को प्रेम करते थे, उन्हें चाहते थे। एंड दे रिमेन फॉर हिम, और वो उनके लिए थे द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, वो संसार के सबसे अद्भुत, सबसे अच्छे नगरों में से एक थे। कौन? बनारस और दुमराव जैसे जो दो टाउन्स हैं, ये उनके लिए दुनिया के सबसे बड़े टाउन्स थे। A student of his once wanted him to head a शहनाई स्कूल इन USA। उनके एक विद्यार्थी उनसे चाहते थे कि वो USA यानी अमेरिका में एक शहनाई का स्कूल स्थापित करें। एंड स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फियर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल देयर। और उसने वादा किया, किसने वादा किया? उस स्टूडेंट ने वादा किया। स्टूडेंट ऑफ एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फियर, और उस स्टूडेंट ने प्रॉमिस किया कि वो ऐसा एटमॉस्फियर, ऐसा वातावरण उत्पन्न कर देगा। कैसा? बनारस जैसा वातावरण, यानी बनारस जैसा माहौल उत्पन्न कर देगा। बाय रिप्लिकेटिंग का मतलब होता है कॉपी करना, कॉपी मतलब नकल करना। तो वो वहाँ नकल कर देगा, यानी वैसे ही चीज़ को बना देगा, बनारस जैसे मंदिरों, द टेम्पल्स देयर, क्या बना देगा? टेम्पल्स, वहाँ पे मंदिरों का निर्माण कर देगा। बट खान साहब कौन है बच्चा? खान साहब वही उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। कह रहा है बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। खान साहब ने कहा कि क्या वो रिवर गंगा को भी वहाँ पर ला सकता है। लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड, बाद में उन्होंने कहा दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री, और इसीलिए उन्होंने कहा कि दैट इज़ वाई, इसीलिए उन्होंने कहा वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री, जब भी मैं विदेश में होता हूँ, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, मुझे यर्निंग का मतलब होता है चाहत होना, मुझे हिंदुस्तान की चाहत होती है। वाइल इन मुंबई, और जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ वनली बनारस, तो मैं एंड द होली गंगा, तो मैं केवल बनारस और होली पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मठा ऑफ दुमराव, तो मैं उस यूनिक मठ, एक स्पेशल मठ जो दुमराव में है, उसको मैं
याद करता हूँ। आपको पता होगा दुमराव वही प्लेस है जहाँ बचपन में एक लोकल महाराजा के द्वारा 1.25 यानी 1.25 किलो का उन्हें क्या दिया गया था, लड्डू दिया गया था। जो फर्स्ट पैरा में आपने पढ़ा था वही प्लेस क्या है, दुमराव। दुमराव उनका बर्थ प्लेस है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का बर्थ प्लेस है। यहाँ पे थोड़ा सा एक इंटरव्यू है शेखर गुप्ता का बिस्मिल्लाह खान के साथ। तो इस इंटरव्यू को भी मैं चाहता हूँ कि आपके सामने पढ़ दूँ ताकि अगर आप अच्छे से इसको भी समझ लें। शेखर गुप्ता कहते हैं कि व्हेन पार्टीशन हैपेंड डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान। जब पार्टीशन हुआ यानी जब देश का बंटवारा हुआ तो आप और आपका परिवार क्या पाकिस्तान जाने की नहीं सोचे। तो बिस्मिल्लाह खान कहते हैं गॉड फॉरबिड मी, भगवान अल्लाह मुझे माफ़ करे, लीव बनारस, मैं बनारस को छोड़ दूं, नेवर, कभी नहीं। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, मैं एक बार पाकिस्तान गया था। आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से, मैंने बॉर्डर को यानी बॉर्डर जो देश का बॉर्डर है उसको इसलिए पार किया ताकि मैं कह सकूं, टू से यह कहने के लिए आई हैव बीन टू पाकिस्तान कि मैं पाकिस्तान में था यानी मैं पाकिस्तान में गया था। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, मैं वहाँ पर 1 घंटे रहा। कहाँ पर, पाकिस्तान में मैं 1 घंटे रहा। आई सेड नमस्कार टू पाकिस्तानीज एंड सलाम वालेकुम टू इंडियंस, मैंने वहाँ पर कहा कि ए पाकिस्तानी आप सबको नमस्कार और इंडियंस को कहा कि आप सबको सलाम वालेकुम। आई हैड अ गुड लाफ, मुझे बहुत हंसी आई। नाउ सी द 13th पैरा एंड आई होप दिस इज़ द लास्ट पैरा ऑफ दिस चैप्टर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो जीवन था वो समृद्धि भारत की धरोहर से भरा हुआ था। यानी यहाँ कल्चर हेरिटेज का मतलब होता है धरोहर, कल्चरल हेरिटेज मतलब सांस्कृतिक धरोहर से उनका जो जीवन था वो पूर्ण रूप से भरा हुआ था। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट अ डिवोट Muslim like him can be naturally play the शहनाई every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। कह रहा है कि एक उन जैसा वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट, किसी को मुश्किल होगी यह विश्वास करना कि दैट की अ डिवोट मुस्लिम, यानी डिवोट का मतलब होता है समर्पित। यहाँ पे ये वर्ड है डिवोट, डिवोट का यहाँ पर आप मीनिंग देखें, बिलीविंग स्ट्रांगली इन अ रिलीजन एंड ओबेइंग इट्स लॉ एंड फॉलोइंग इट्स प्रैक्टिसेस। वो इंसान जो क्या करता है, किसी भी धर्म को बहुत कड़ाई से मानता है और उसके सारे प्रिंसिपल को, उनके सारे सिद्धांतों को बहुत ही कड़ाई से उसका पालन करता है, उसे हम कहते हैं डिवोटी। तो कह रहा है कि वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट, किसी को यह विश्वास करना बहुत ही मुश्किल होगा दैट अ डिवोट मुस्लिम लाइक हिम, कि उनके जैसा कट्टर मुसलमान कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई, वो बहुत ही सरलतापूर्वक शहनाई को बजाता था एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। कहाँ पर बजाता था, काशी विश्वनाथ टेम्पल पे जाकर बजाता था। और लास्ट में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पास्ड अवे ऑन 21 August 2006 at the age of 90 at a prolonged illness। कह रहा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 21 अगस्त 2006 को उनका निधन हो गया 90 वर्ष की उम्र में, आफ्टर अ प्रोलॉन्ग इलनेस, एक लंबी बीमारी से। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है बच्चा लंबा बीमारी, हाँ, इलनेस मतलब बीमारी होता है, प्रोलॉन्ग मतलब लंबी, एक लंबी बीमारी से उनका क्या हो गया, निधन हो गया। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल and the governor of India declared one day a national mourning। कह रहा he was given a state funeral, उन्हें राजकीय सम्मान से उन्हें विदा किया गया। एंड द गवर्नर ऑफ इंडिया, और भारत की जो एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर, और भारत की जो सरकार थी उसने घोषित किया वन डे अ नेशनल मॉर्निंग, एक दिन का राष्ट्रीय शोक। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे आप सबको ये चैप्टर अब ख़त्म हो गया पूरा। क्वेश्चन आंसर है वो मैं आप लोगों को दे दूंगा लिख के या जैसे भी।
अब मैं इसको थोड़ा सा इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको जो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हों वो पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए. So let us start from 11th para. I hope you all will be remember. We in this video we are discussing from the 11th para. In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. As I have already told you that Ustad Bismillah Khan received the highest civilian award of India, that was a Bharat Ratna in 2001. With the coveted award resting on his chest and his eyes glistening with a rare happiness, he said, when he received this award, this highest civilian award, his eyes were glittering at that time. And once when he just got this award, he just said that all I would like to say, this is the message of Bismillah Khan to the Indians, that teach your children music. He just suggested to Indians that teach your children music. This is Hindustan's richest tradition, and he also further told us that this is only the tradition of richest, one of the richest tradition of India. Even the West is now coming to learn our music. And he further said that not only Indian but also foreigner come to know about our this tradition, our this culture, our this heritage, that what kind of a heritage Indians have. In spite of having traveled all over the world, Khan Sahab, as he fondly called. Here, this is the nickname of Ustad Bismillah Khan. Everyone, by lovingly, they said to him that by name of Khan Sahab. So, in spite of having traveled all over the world, means that Ustad Bismillah Khan, he traveled all over the world, and the Indian, not only Indian but also foreigners, called him lovingly by naming that Khan Sahab. Is excitingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world, and said that Banaras and Dumrao, these are the most wonderful or most pleasant place for Ustad Bismillah Khan. He never want to miss this place, and this both these places are more fascinating to him compared to all over the world most wonderful towns of the world. A student of his once wanted to head a Sahnai school in USA. One of his student who is belonging from the USA, once he requested to him that he just said to Ustad Bismillah Khan, please established one school in USA, and he also promised to him that he will replicate the temples and the atmosphere as Banaras, means everything he will create in a USA. But Khan Sahab, who is a Khan Sahab? Khan Sahab is a Ustad Bismillah Khan. But Khan Sahab asked him if he would be able to transport river Ganga as well. He just asked very sarcastically that can it will be possible, that you can create river Ganga in a USA, you can took river Ganga in USA. Later he is remembered to have said, and later on this is the message of Ustad Bismillah Khan. That is why whenever I am a foreign country, I keep yearning to see Hindustan. Means whenever he just go for business trip or for performing his music, every time he just miss Hindustan. Why? And he further said that while in Mumbai, when he stay in Mumbai, he think only of Banaras and Holy Ganga, and when he was in Banaras, he just missed the mutt of Dumrao. Here is the interview between Shekhar Gupta and Bismillah Khan. Once Shekhar Gupta asked him that
have you ever thought to go Pakistan with your family? So Bismillah Khan just replied him very politely that never he want to go to Pakistan. But he further said that once he went to across the border and went to Pakistan just to say this, that he just live in a Pakistan, he just stay in a Pakistan only 1 hour, he just stay in Pakistan, and ultimately after spending 1 hour from there, he just come back to India. And from coming on the journey, that time he just said that Namaskar Pakistan as Salam Walaikum Indians. Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of a rich culture heritage of India. That here the writer tell us that being a Muslim, Ustad Bismillah Khan was one of a perfect example of India's rich culture and heritage. Why he say like that? Because being a Muslim, he just follow all the cultures and religion of the Hindu as well. Means further he said one that effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play the Sahnai every morning at Kasi Vishwanath temple. Means this is the tradition of our India, that most of Muslim, or if we are talking about most of Hindus, they never go to the mosque, or the Muslim never come to the temple. But if we are talking about Bismillah Khan or a Khan Sahab, he every time he just follow his rituals, his tradition. Means being a Muslim, he was very devoted to follow the principle of Muslims. But also he just also go to the Vishwanath temple to perform his music, to just play Sahnai on that temple. And this is very misfortune for our Indians, that Ustad Bismillah Khan passed away on 21st August in 2006 at the age of 19, after a prolonged illness. Means that after a long illness, at the age of 90, Ustad Bismillah Khan passed away in 21st August 2006. He was given state funeral, and the government of India declared one day national mourning. Means he was forbidden by the state government as well as by the Indian government, and Indian government declared one day national mourning on the death of Ustad Bismillah Khan or Khan Sahab. I hope, my dear student, you all are benefited by this लेक्चर. एंड आप सब इस लेक्चर से थोड़ा थोड़ा प्रभावित तो हुए होंगे, आप लोग को समझ में आया होगा कि सर ने आपको क्या पढ़ाया. अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया होगा या जो भी प्रॉब्लम्स होगी, तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं कि सर प्लीज़ इस लाइन को समझा दीजिए, या इस चैप्टर को समझा दीजिए, या उस वर्ड मीनिंग को समझा दीजिए. मैं कोशिश करूंगा उसको समझाने की. और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको समझ में नहीं आया, ये तो ऑनलाइन क्लास है और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है कि आप जितनी बार चाहें, ये रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, आप जितनी बार चाहें, जब जब चाहें, इस वीडियो को पुनः आप देख सकते हैं. आप सबके लिए एक बार मैं फिर से वो गाना बजा दे रहा हूँ. कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर उस जो लास्ट वीडियो था उसमें जो गाना अपने दिल का खिलौना है टूट गया, वो सुनाई नहीं दिया था, तो मैं फिर से आपको बजा दे रहा हूँ. आप उस गाने को सुन लीजिए और उसके बाद आपके लिए थैंक यू.
खिलौना हाय टूट गया, दिल का खिलौना हाय टूट गया। हुआ क्या कसूर ऐसा सैया हमारा, हुआ क्या कसूर ऐसा सैया हमारा, जाते हुए जो तूने हमें ना पुकारा, जाते हुए जो तूने हमें ना पुकारा, उल्फत का तार तोड़ा, हमें मझधार छोड़ा, हम तो चले थे लेके तेरा ही सहारा, साथी हमारा हमसे छूट गया, दिल का खिलौना हाय टूट गया। कोई लुटेरा के लूट गया हाय, कोई लुटेरा के लूट गया हाय, दिल का खिलौना हाय टूट गया, दिल का खिलौना हाय टूट गया। कैसी परदेसी तूने प्रीत लगाई, कैसी परदेसी तूने प्रीत लगाई, चैन भी खोया हमने नींद गंवाई, चैन भी खोया हमने नींद गंवाई, तेरा इकरार करके हाय इंतजार करके, खुशियों के बदले गम की दुनिया बसाई, जालिम ज़माना